کہ آپ کو اپنا نہیں پتا کہ آپ جنتی فرقہ ہے، یعنی آپ کو حق نہیں کہ دوسروں کو آپ بتائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنا عقیدہ چھپایا کرتا تھا، 10 سال تک اس نے اپنا عقیدہ چھپایا ہے لوگوں سے۔ کیا کہو گے اس کو؟ فسادی کہو گے؟ منافق کہو گے؟ اپنا مسلک چھپاتا رہا۔ حکیم نور الدین کہتا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ غیر مقلد ہیں ان کے بقول، مگر جب کہتے تھے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، تو کہتا ہے جی ان کو بتا دیا کرو میں حنفی ہوتا ہوں۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرقوں سے بچایا تھا، تو آپ کا فرقہ جو اپنے دعوے سے پہلے تھا وہ اسی میں شمار ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فرقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرقہ کون سا تھا؟ نام لو اس کا۔ رضی تمہیں جرت ہے تو یہ جو جھوٹ بکا ہے تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع کے چکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی فرقے کے اندر ڈال دیا ہے، تو بتاؤ وہ فرقہ کون سا تھا؟ جو آپ جس نے آپ کی بیعت کی وہ اس فرقے میں شامل ہو گیا جو کہ صحابہ کا فرقہ تھا، جس نے آپ کو انکار کیا وہ ان جہنمی فرقوں میں سے ہو گیا۔ یہ آپ کا جواب۔ اس نے کہا ہے جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی پہ لوگ ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ اسی فرقے پر چلے جاتے تھے جو صحابہ کا فرقہ تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ نام فرقے کا رکھا ہے جماعت احمدیہ، اور بیعت کروانے پر پیش کہتے ہیں جی وہ صحابہ کے فرقے میں تھا۔ صحابہ کا کون سا فرقہ تھا بتا؟ صحابہ کا نظریہ تھا۔ اسی لیے اگر صحابی کا کوئی فرقہ ہوتا تو دا رائٹ ٹائم واز دیئر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینشن کرتے کہ یہ جو 72 جہنم میں جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، سارکلہم فی النار الا واحدہ، جو ایک ہوگا تو اللہ کے رسول کہتے یہ وہ فرقہ ہوگا، نام لیتے۔ اللہ کے رسول نے نام تو نہیں لیا، آپ نے نظریہ پیش کیا، آئیڈیالوجی پیش کی، فلسفی پیش کی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک گروہ کی جو حق کی طرف بلائے گی اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدائش سے لے کے وفات تک شامل تھے، ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں رسمی عقیدہ لکھتا رہا حیات مسیح کا، اور آگے جا کر کہتا ہے کہ وہ شرکیہ عقیدہ تھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی 50 سال تک شرکیہ عقیدے کی دعوت دیتا رہا، تو عقل کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی عقیدہ رکھتا رہا، مرزا غلام احمد قادیانی شرکیہ عقیدہ رکھتا رہا، اس کی دعوت دیتا رہا۔ تو یہ کہاں سے ڈھکوسلا مار دیا کہ جی پیدائش سے لے کر آخر تک اپنے مرنے تک جو ہے وہ جناب حق پر رہا۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میری سادگی سمجھو، لا علمی سمجھو، کہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ تو مسیح موعود ہے اور مجھے خبر بھی نہ تھی، وہ خود کہتا ہے، اور یہ لا علمی کو کہہ رہا ہے کہ حق پر تھا۔ لو، کبھی جاہل کو بھی حق پر مانا گیا ہے۔ حق پر ہونا پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کون سا حق پر ہونا ہے کہ جس میں حق پہ ہونے والے کو پتہ نہ ہو کہ وہ جھوٹ پر ہے؟ واہ بھائی واہ، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ یہ تیسری بار آپ میری بات کریں، اس وجہ سے میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں اپنا عقیدہ و مذہب دریافت کرنے پر نہ بتانے سے ظاہر یہی ہے کہ اس میں کچھ فساد ہے، تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کے عقیدے میں، آپ کے فرقے میں فساد ہے، اس وجہ سے آپ نے چھپائی ہے بات۔ اگر آپ نے اپنا فرقہ نہیں بتانا پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دے دوں گا، لیکن آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ مجھے کبھی بھی دعوت دیں یا کسی اور کو تبلیغ کریں، کیونکہ آپ کو اپنا نہیں پتا کہ آپ جنتی فرقہ ہے، یعنی آپ کو حق نہیں کہ دوسروں کو آپ بتائیں۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی عامر بھائی، جہاں پہ آپ چاہیں نا اپنا تبصرہ کریں مجھے بتائیے گا، میں وہاں پہ روک دوں گا۔ جی اس پہ میں بات کر لوں پہلے، اس سے پہلے کہ اب یہ ڈیفینیشن شروع کرے۔ پہلی بات اس نے بلنڈر مار دیا، اور نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کی نہ کوئی حدیث پیش کی، کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر صرف اپنا تعارف مسلمان کے طور پر کروایا گیا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ریفرنس پیش کر کے یہ حجت پیش کر رہا ہے کہ جو اپنا فرقہ نہ بتائے یا اپنی چیز چھپائے، تو اس کے بارے میں یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اپنا عقیدہ چھپایا کرتا تھا، 10 سال تک اس نے اپنا عقیدہ چھپایا ہے لوگوں سے۔ کیا کہو گے اس کو؟ فسادی کہو گے؟ منافق کہو گے؟ مانا ہے کہ 10 سال تک میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کیا ہوں، چھپاتا رہا اپنا عقیدہ، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، اپنا مسلک چھپاتا رہا۔ حکیم نور الدین کہتا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ غیر مقلد ہیں ان کے بقول، مگر جب کہتے تھے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، تو کہتا ہے جی ان کو بتا دیا کرو میں حنفی ہوتا ہوں۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حوالے موجود ہیں، کسی کو حوالہ چاہیے ہوگا ہم پیش کر دیں گے، کوئی بات بھی بنا حوالے کے نہیں ہوگی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا حکم لگاؤ گے کہ جو لوگوں کے پوچھنے پر کہتا تھا میں حنفی ہوں، جبکہ اندر لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ غیر مقلد ہے؟ یہ اپنے بقول ان کے جملے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، بالکل صحیح، تو آپ حدیث کو بھی مان گیا الحمدللہ کہ ایک جنتی جماعت ہوگی، دوسرے سب جہنمی۔ آپ نے یہاں تک تسلیم کر لیا، بس آپ کو پتہ نہیں کہ آپ وہ ہیں یا نہیں، اس پہ کوئی مجھے تو نہیں فرق پڑتا۔ بہرحال پھر آپ نے کہا کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے ابھی نئی دعویٰ کیا کہ آپ مسیح ہیں، تو کیا وہ 73واں فرقہ تھا؟ دیکھیں اس حدیث میں 73 کا لفظ۔ عامر بھائی یہاں پہ آپ کو تھوڑا ایک کانٹیکسٹ دے دوں، اس بھائی نے سوال یہ کیا کہ دیکھو مرزا غلام قادیانی نے جب تک کوئی دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا اس کا فرقہ کون سا تھا؟ یہ بھائی سوال ہے کانٹیکسٹ جو ہے وہ کثرت کے لیے ہے، تو ہاں کثرت کے لیے استعمال ہوئے، بہت سارے فرقے تھے، 73 فرقے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا خود ہی ذکر کیا کہ وہ فرقے موجود تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیونکہ امام مہدی اور مسیح تھے، اور آپ کے خود یہ علماء تسلیم کرتے ہیں جو مہدی اور مسیح ہیں ان کی آبویسلی اللہ تعالیٰ نے خاص ایک
ان کی جو زندگی ہے اس کا ٹیک ہے، جیسے ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایسے امام مہدی اور مسیح کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرقوں سے بچایا تھا. تو آپ کا فرقہ جو اپنے دعوے سے پہلے تھا وہ اسی میں شمار ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فرقہ تھا، اور اس کا جو تسلسل شروع. روکیے گا ذرا، کون سا فرقہ تھا جی وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرقہ کون سا تھا؟ نام لو اس کا. رضی تمہیں جرت ہے تو یہ جو جھوٹ بکا ہے تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع کے چکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی فرقے کے اندر ڈال دیا ہے، تو بتاؤ وہ فرقہ کون سا تھا؟ اس کا نام بتاؤ، اور قرآن اور حدیث سے پیش کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانے دینا. قرآن و حدیث سے پیش کرنا ہے کہ انہوں نے کس فرقے سے اپنے آپ کو کلیم کیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی تو خود کو کرتا رہا، وہ تو خود کو کہتا رہا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی کہتا رہا کہ میرا کیا ہے کیا نہیں ہے. اور پھر 1891 اور 92 کے اندر ایگزیکٹلی جب سینسز ہوئے انڈیا کے اندر، اس نے اپنا فرقہ قادیانیہ احمدیہ رجسٹر کروایا فرقے کے نام سے. اب میرا چیلنج ہے، کیا اس حدیث کے اندر اس فرقے کا نام احمدیہ ہے؟ احمدیہ ہے نام اس کا، یا ان باقی 72 کے نام اس حدیث کے اندر مینشن ہے؟ یہی تم سے اس دن سوال تھا کہ فرقے کو ڈیفائن کرو اور پھر ثابت کرو کہ جن کے اوپر ہم سے تکفیر لگوانا چاہ رہے ہو وہ اس فرقے کی ڈیفینیشن اور اس 72 کے اندر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، یہ ثابت کرنا ہو. وہ نہیں کیا جی. ہوا اس زمانے میں پیش ہوئی کے مطابق وہ آپ علیہ السلام سے شروع ہوا. جو آپ جس نے آپ کی بیعت کی وہ اس فرقے میں شامل ہو گیا جو کہ صحابہ کا فرقہ تھا. جس نے آپ کو انکار کیا وہ ان جہنمی فرقوں میں سے ہو گیا. یہ آپ کا جواب. جی روکیے گا ذرا، جی روکیے گا. یہ جو آپ کی بیعت میں شامل ہو گیا وہ جناب فرقے کے اندر صحابہ کے فرقے کے اندر شامل ہو گیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلی بیعت لی کب لی تھی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی پہلی بیعت ہوتی ہے ایگزیکٹلی 1885 یا 86 کے اندر. 1885 اور 86 کے اندر پہلی بیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی امتیاز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عامر بھائی یہاں پہ میرے خیال میں جو بیعت ہے وہ 89 میں ہے. نہیں، پہلی بیعت جو ہوئی ہے، پہلی بیعت وہ کس دعوے کے حساب سے تھی؟ یہی تو کہنے لگا ہوں. اچھا اس نے بیعت بولا ہے، اس نے کہا ہے جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی پہ لوگ ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ اسی فرقے پر چلے جاتے تھے جو صحابہ کا فرقہ تھا. یہ کیا تماشا ہے؟ نام فرقے کا رکھا ہے جماعت احمدیہ اور بیعت کروانے پر پیش کہتے ہیں جی وہ صحابہ کے فرقے میں تھا. صحابہ کا کون سا فرقہ تھا بتا؟ صحابہ کا نظریہ تھا. اسی لیے اگر صحابی کا کوئی فرقہ ہوتا تو دا رائٹ ٹائم واز دیئر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینشن کرتے کہ یہ جو 72 جہنم میں جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، سارکلہم فی النار الا واحدہ، جو ایک ہوگا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ وہ فرقہ ہوگا. نام لیتے، اللہ کے رسول نے نام تو نہیں لیا. آپ نے نظریہ پیش کیا، آئیڈیالوجی پیش کی، فلسفی پیش کی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. نعوذ باللہ کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ بنانے آئے تھے؟ کیونکہ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. آبویسلی وہ ایک آئیڈیالوجی تھی. تو یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ شخص اس فرقے میں شامل ہو جاتا ہے جو صحابہ کا فرقہ ہے، تو یہاں دو چیزیں ہیں. پوائنٹ نمبر 1، صحابہ کا فرقہ کون سا تھا اس کا نام بتانا ہے. نام، یہ نہیں کہنا صحابہ کا فرقہ تھا اصحابی، یہ ڈرامہ نہیں کرنا. صحابہ کا فرقہ تھا اصحابی جی. تو پھر تو دو فرقے ہو گئے، ما انا علیہ اللہ کے رسول کا الگ فرقہ اور صحابہ کا الگ فرقہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے دو چیزیں پیش کی ہیں واو کے عطف کے ساتھ، ما انا علیہ جس پر میں ہوں و اصحابی اور میرے صحابہ ہیں. تو اگر تم نے شخصیات کی بنیاد کے اوپر فرقے تقسیم کرنے ہیں تو پھر تمہیں دو فرقے ماننے پڑیں گے، ایک اللہ کے رسول نعوذ باللہ اور ایک اصحاب. اور یا پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا فرقہ کون سا تھا، اس کا نام لینا پڑے گا. دوسری چیز یہ. اب تیسری چیز، تم نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت جب ہوتی تھی تو وہ اسی فرقے پہ آ جاتا تھا جو صحابہ کا فرقہ تھا. مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلی بیعت جو ہے وہ 1886 کے اندر کی ہے اکارڈنگ ٹو مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں سیرت مسیح موعود. پہلی بیعت 1885 اور 86 کے اندر ہوئی ہے. بتاؤ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا فرقہ تھا کون سا؟ کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ خود پر جو ہے وہ خود کو صاحب شریعت صاحب کتاب کہتا تھا؟ خود کو عین محمد است کہتا تھا؟ نعوذ باللہ. خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کہتا تھا؟ 1886 کے اندر خود کو مسیح موعود کہتا تھا؟ 1886 کے اندر خود کو امام مہدی کہتا تھا؟ پیش کرو پھر. اگر پہلی بیعت جو کرتا تھا بیعت اور وہ صحابہ کے فرقے پر ہوتا تھا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ 1886 اور 85 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ صحابی کا عقیدہ تھا. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ختم سمجھتا تھا تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. جماعت احمدیہ کی دھجیاں اڑ گئیں. اگر تم کہو کہ وہ صحابی کا عقیدہ تھا تو مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ حیات مسیح کا عقیدہ تھا، پھر دھجیاں اڑ گئیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بتانا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کر کے صحابہ کے عقیدے پر وہ کیسے چلا گیا. جی جناب امتیاز بھائی آگے چل. کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا تو لوگوں نے ان کو اپنا لیا تو اس کو آپ یہ طرح فرقہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت بن گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت کچھ لوگ موجود تھے، کوئی جماعت موجود تھی، کوئی فرقہ موجود تھا جو ما انا علیہ و اصحابی پر تھا، جس میں وہ خود بھی جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی خود کسی فرقے میں نہیں ہوتا، وہ خود اپنے طور پر ہوتا ہے ساری چیزیں. لیکن جب وہ دعویٰ نہیں کیا، ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں مہدی ہوں، کہ میں محدث ہوں، کہ میں کرشنا ہوں، اس وقت وہ کس فرقے پر تھے، کس فرقے کو فالو کر رہے تھے؟ کوئی جماعت تھی، کچھ لوگ تھے.
जी। और एक काम करिए, आप बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो थोड़ा वक़्त देते हैं, आप 2-3 मिनट 4 मिनट बातें करें। थोड़ा मुख्तसर करेंगे तो मतलब अच्छा होगा बात करने का, ठीक है? पहली बात आमिर भाई देखिए, हमारे भाई ने दोबारा सवाल रिपीट कर दिया कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी किसी किस्म की बैत लेने से पहले किस फ़िरके पे था? बिल्कुल। ये आप ये अंदर डालते जाने कि जब वो कृष्णा नहीं थे, इस पे अगर आपने मुनाज़ा करना कि हज़रत कृष्णा एक नबी थे, आपकी किताबों से भी मैं साबित करूँगा, फिर आपको इंशाअल्लाह तसल्ली हो जाएगी कि उन्होंने जो कहा है कि मैं कृष्ण हूँ, ये नहीं आप ऐसा नहीं कहा कि मैं रीइन्कार्नेशन हूँ। आपने ये दावा किया कि रोकिएगा ज़रा, तमाम रोकिएगा ज़रा। लो जी, इस अकल के दुश्मन को देखें, कहता है जी कि कृष्ण जो हैं वो नबी थे, ये मैं साबित करने के लिए आपकी नबूवत मुखालिफ की किताबों से साबित होती है या कुरान और सुन्नत से? यानी हम नबियों पर ईमान, यानी हम इब्राहीम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, आदम, इब्राहीम, नूह, इसहाक, इस्माईल, जितने अंबिया हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमाइन, उनको मुखालिफ की किताबों से, यानी बाइबल ने कहा है तब हम उनको मानते हैं या कुरान ने उनको कहा है? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि थे और उनकी किताब मुहैमिनन अलैहि थी, उस बुनियाद पर हम मानते हैं अंबिया को, या हम बाइबल की बुनियाद पर मानते हैं? इस बंदे का दिमाग काम कर रहा है हर चीज में। वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा था कि बस सूअरों की तरह सीधा सर करके दौड़ते चले जाते हैं, चाहे सामने को बंदूक लेके बैठा हो, और उसके अंदर आके घुसेंगे गोली खाने के लिए। ये वो हिसाब है। ये जी इसके ऊपर करेंगे, तमाशा करेंगे। जी जनाब। अंबिया की सिफ़ात है वो आप में भी, आपके उलमा कहते हैं कृष्णा नबी, आप इस्तेज़ा तो ना करें अपने अंबिया की, पहली बात। दूसरी बात ये आपने कहा कि जवाब नहीं हुआ, जनाब आपने फैसला करना कि जवाब हुआ या नहीं। मैं हज़ार सवाल मुसलमानों को पूछे, मेरे नज़दीक आज तक एक सवाल का जवाब नहीं आया। अपने लिहाज से जवाब देना होता है। मेरा ये नहीं मकसद कि मैं आपको कन्विंस करूँ, ला इकराह फिद्दीन। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफ़िर भी नहीं बात मानते, हालाँकि अल्लाह ने निशान दिखाए। अगर अल्लाह ने उनको निशानात दिखाए फिर भी वो कहते थे निशान नहीं आए, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं जवाब दूँ और आप कह देंगे हाँ जवाब आ गया। आपने तो यही रट लगानी कि नहीं जवाब आया, नहीं जवाब आया। ये तो हर मुखालिफ कहता है। फिर से आपने वही बात पूछी कि जब आप अलैहिस्सलाम ने दावा नहीं कि देखिए, जब खिलाफत है तो उसको मानना ज़रूरी है, उसकी बरकतें हैं। जब खिलाफत नहीं है तो वो उसूल लागू नहीं होंगे। ये 73 फ़िरकों वाली हदीस ने अपनी शान में पूरी तरह जो उसकी शान नज़र आई है, वो तब भी है जब रोकिएगा जरा, मसीह इमाम ये क्या इसने ब्लंडर मारा है? जब खिलाफत है तो ये नहीं होगा। ये कौन सा असूल है जो खिलाफत नहीं होगी तो लगेगा? ये कौन सा असूल है? ये क्या ब्लंडर भाई इसने मारा है? इम्तियाज भाई जरा आमिर दोबारा भाई चलाइएगा ये। जी। हाँ, बिल्कुल भाई, ये बात आप दोबारा सुनें और इस कुफ़्र को खोलें ज़रा भाई ज़रा, ये देखें ज़रा। हालाँकि अल्लाह ने निशान दिखाए, अगर अल्लाह ने उनको निशानात दिखाए फिर भी वो कहते थे निशान नहीं आए, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं जवाब दूँ और आप कह देंगे हाँ जवाब आ गया। आपने तो यही रट लगानी कि नहीं जवाब आया, नहीं जवाब आया। ये तो हर मुखालिफ कहता है। फिर से आपने वही बात पूछी कि जब आप अलैहिस्सलाम ने दावा नहीं कि एक मिनट देखिए, जब रोकिएगा खिला इधर, रोकिएगा। लें जी, थोड़ा-सा 5 सेकंड पीछे करें, 5 सेकंड। इसका मैं फ़ॉर्मूला सेट करने लगा हूँ। हालाँकि अल्लाह ने निशान दिखाए, अगर अल्लाह ने उनको निशानात दिखाए फिर भी वो कहते थे निशान नहीं आए, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं जवाब दूँ और आप कह देंगे हाँ जवाब आ गया। आपने तो यही रट लगानी कि नहीं जवाब आया, नहीं जवाब आया। ये तो हर मुखालिफ कहता है। फिर से रोके, आपने रोके, वही बात रोके, रोके। रज़ी साहब यहाँ एक उसूल पेश कर रहे हैं, जब इनसे जवाब नहीं बन पाता, तो ये एक्सक्यूज़ ये पेश कर रहे हैं कि हर मुखालिफ ये कहता है, रट लगाता है, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया। रज़ी साहब, ये रट तो तू लगा रहा है। जब इम्तियाज़ भाई तुझे जवाब देते हैं, अदनान भाई तुझे जवाब देते हैं, तू भी यही रट लगाता है, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं दिया, तो फिर तुम्हारा क्या करें? तुम भी मुखालिफ हो। फिर किस तरह मानेंगे? किस जवाब को मानेंगे? क्योंकि तुम भी यही कह रहे हो कि जी मुखालिफ जो होता है, वो तो यही रट लगाएगा, जवाब नहीं आता। यही रट तो तूने लगाई हुई है। तो इंसान का बच्चा बन, तो पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं चीज़ों को। जी। बात पूछी कि जब आप अलैहिस्सलाम ने दावा नहीं कि देखिए, जब खिलाफत है तो उसको मानना ज़रूरी है, उसकी बरकतें हैं। जब खिलाफत नहीं है तो वो उसूल लागू नहीं होंगे। ये हाँ 73 जी। फ़िरकों वाली हदीस ले जी। रोके। जब खिलाफत है तो उसको मानना जरूरी है, जब खिलाफत नहीं है तो वो उसूल लागू नहीं होंगे। कौन से उसूल? ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। इम्तियाज भाई को आप समझे हैं तो मुझे समझाएं। ये देखिएगा। ने अपनी शान में पूरी तरह जो उसकी शान नज़र आई है, वो तब भी है जब मसीह इमाम महदी आए। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहा है कि वो जो उस हदीस है ना कि 73 फ़िरके होंगे और एक दुरुस्त होगा। कहता है उस हदीस की, उस पेशनगोई की शान तब ज़ाहिर होनी थी जब मिर्दे की खिलाफत कायम हो। चलो, यानी उस हदीस की, वो जो मा अना अलैहि व सहाबी वाली है। हाँ जी, ये देखिएगा दोबारा ज़रा, मैं आपको ये दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, अभी सुनिएगा। खिलाफत है तो उसको मानना ज़रूरी है, उसकी बरकतें हैं। जब खिलाफत नहीं है तो वो उसूल लागू नहीं होंगे। ये 73 फ़िरकों वाली हदीस ने अपनी शान में पूरी तरह जो उसकी शान नज़र आई है, वो तब भी है जब मसीह इमाम महदी आए। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस अब है, रोकिएगा जब जरा, रोकिएगा। इसका मतलब ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले जितने लोग हैं वो सारे के सारे जहन्नमी हैं। ये दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं, क्योंकि मा अना अलैहि व असहाबी का इजहार हुआ ही मिर्जा कादियानी की बेसत के बाद है, इनके बकौल। ये उसूल दे रहा है कि मा अना अलैहि व असहाबी हदीस की तकमील और उसका ज़ुहूर और उसका इजहार हुआ ही तब है जब मिर्जा गुलाम कादियानी आया है और जमात कादियानिया की खिलाफत कायम हुई है तब। तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले खिलाफत राशिदा के खत्म होने के बाद जितना जमाना है वो सारे के सारे कुल्लुहुम फिन्नार का जमाना है, नऊज़ बिल्लाह। और फिर जब मिर्जा गुलाम कादियानी आया है तब वो जमाना शुरू हुआ है जो मा अना अलैहि व असहाबी पर है। ये कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा ब्लंडर। इस बंदे को नहीं समझ आ रही। आगे चलते हैं। अल मुस्लिमीना व इमामहुम कि जब आखिरी ज़माने में फ़िरके हो जाएँगे तो जमात में शामिल हो जाएँ, जो कि इमाम के साथ जमात होगी। तो जब ये हदीस का पूरे होने का वक़्त हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने दावा एक मिनट की रोकिएगा दुनिया जरा, को मानो।
रोकिएगा जरा, ये किधर लिखा हुआ है कि जी वो इमाम के साथ जमात होगी? उस हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? उसमें कहाँ लिखा हुआ है? उसमें तो मा अना अलैहि व अस्हाबी लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो इमाम होगा उनका कोई या कोई जमात होगी? ये कहाँ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा उस हदीस के, सिर्फ ये लिखा है कि वो लोग होंगे जिनका नजरिया मा अना अलैहि व अस्हाबी पर है। अब इमाम हो या ना हो, मिसाल के तौर पर हदीस है, ये जो मैं बात कर रहा हूं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, हदीस है किताबुल फितन के अंदर कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अब कमाल बात यह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इनकी जड़ काटते हैं कादियानियत की, इनको बड़े चुभते हैं, बहुत चुभते हैं। इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कह दिया कि जनाब हजरत अबू हुरैरा जो हैं वो नाउज बिल्ला उनको गबी कहा, कज फहम कहा, और हदीस के हवाले से नाउज बिल्ला उनको कमजोर कहा, कम फहम कहा। एक हवाला इस यानी बात नहीं और निकल जाएगी, वरना मैं पेश करता कि बशीरुद्दीन महमूद ने भी इस तरह की बात की हुई है, खैर उसने और पढ़ाई के अंदर आगे जाके की है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से हदीस है और आगे भी कई और असहाब से है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल कुर्ब क़यामत के अंदर फितने आएंगे तो क्या मामला होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अगर जमात मौजूद हुई, उनका कोई इमाम मुत्तफिक तौर पर हुआ तो उसको थाम लेना। सवाल हुआ अगर ना हुआ तो क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने कहा जंगलों में चले जाना। चाहे पता चला कि एक मुसलमान अगर जमात नहीं है, अगर इमाम नहीं है, तब भी बहसियत मुसलमान और ईमानदार सर्वाइव कर सकता है। इससे ये इशारा मिलता है। वो सहाबी जो ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई जमात ना हुई, अगर कोई इमाम ना हुआ तो क्या करें, तो अल्लाह के रसूल ने कहा जंगलों में निकल जाना, यानी दुनिया से कता ताल्लुक हो जाना। फ़अतज़िल अनिल फ़िरक़ कुल्लहा, तमाम फिरकों से फिर अलहदगी इख्तियार कर लेना। ये हदीस है उसका टुकड़ा फ़अतज़िल। तो सवाल ये है कि क्या वो मा अना अलैहि व अस्हाबी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो इमाम को खास करके मा अना अलैहि व अस्हाबी के अंदर शामिल करना ये कहां का उसूल है? ये इसलिए शामिल करते हैं कि इन्होंने लोगों को ये धोखा दिया हुआ है कि चूंकि जमात सिर्फ उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई इमाम हो, उसको जमात कहते हैं। ये ढकोसला है। जमात की बुनियाद मा अना अलैहि व अस्हाबी के उसूल पर भी हो सकती है, चाहे कोई मुत्तफिक का इमाम हो या ना हो। उसकी वजह मिसाल के तौर पर कोई ये कह सकता है कि जमात तो एक ऐसे इकट्ठ को कहते हैं जिनका कोई मुत्तफिक का इमाम हो, कोई कह सकता है जी, तो आपका तो कोई इमाम नहीं है, तो हम उनके सामने रखेंगे कि मा अना अलैहि व अस्हाबी में इमाम की निशानदही कर दी। आज भी मुसलमानों का इमाम इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुर रसूल, खातमुर रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो हमारे इमाम हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर हमें किसी और इमाम की अदम मौजूदगी मुज़िर नहीं है। अगर आज भी मुसलमान मुआशरे के अंदर कोई बज़ाहिर इकट्ठा रखने वाला इमाम ना भी हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आपकी नबूवत, आपकी रिसालत और आपका वजूद मुक़द्दस और मुताहर मुसलमानों की इमामत और उनकी रहनुमाई और हिदायत करने के लिए काफी है। इससे यह चीज पता चली कि कादियानियों ने जो ढकोसला दिया था कि मा अना अलैहि व अस्हाबी के अंदर सिर्फ तभी आप हो सकते हैं कि जब आपकी जमात कादियानिया अहमदिया हो और मिर्जा मसरूर जैसा निकट्टू निकम्मा अनपढ़ जो ऊपर से देख के पढ़ नहीं सकता, अंगूठा छाप, वो जनाब आपका इमाम बन जाए। ऐसी जमात को इन्होंने शामिल कर दिया। ये बिल्कुल हदीस के फाहम के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद के और आपकी ताबीर के खिलाफ है। जनाब आगे ना वो सहाबा में रूहानी तौर पे शामिल हो गया, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तायीद की और यही पेशगोई का पूरा भाई ये बात दोबारा इसे तलज़म जमाअतल मुस्लिमीना व इमामहुम कि जब आखिरी ज़माने में फिरके हो जाएंगे तो जमात में शामिल हो जाएं जो कि इमाम के साथ जमात होगी। तो जब ये हदीस का पूरे होने का वक्त हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने दावा कि जिन्होंने आपको माना वो सहाबा में रूहानी तौर पे शामिल हो गया, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तायीद की और यही पेशगोई एक का मिनट पूरा रुकिएगा, होना। लेकिन सॉरी, अब ये कहता है जब इस हदीस का पूरा होना हुआ तब जाकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया। ये जुमला इसने बोला है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो तोहफा गोलडविया के अंदर लिखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और मिर्जा कादियानी से पहले 73 फिरके पूरे हो चुके हुए थे। तो हदीस का पूरा होना तो मिर्जा गुलाम कादियानी से पहले ही हो चुका हुआ था, उसकी पैदाइश से भी पहले। वो कहता है 1200 सालों के अंदर 73 फिरके बने हैं इस्लाम में, और कहता है मेरे आने के बाद उससे डबल हो गए हैं, मल्टीप्लाई। वो कहता है जितने 1200 के अंदर 73 फिरके बने हैं उससे ज्यादा फिरके मेरी मौजूदगी के अंदर बन गए हैं, ये मिर्जा कादियानी कहता है। तो ये कहना कि उस हदीस के पूरा होने पर मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा किया, ये सरी झूठ है अगर उसके लफ्जी माना को देखा जाए। अगर मिसाल के तौर पर कसरत मुराद ली जाए, कसरत, तो ये फैसला कौन करेगा कि कितनी कसरत होगी तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ज़हूर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मिनिमम 73 फिरके मानकर चला जाए जो कि हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज हैं कसरत की बुनियाद पर, तब भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे से बहुत पहले ये नंबर पूरे हो चुके थे बकौल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो वो कसरत का बहाना भी टूट गया। और अगर ये माना जाए कि नहीं जनाब वो 73 की कैद न लगाएं, इससे मुराद कसरत है, तो सवाल ये होगा कि कितनी कसरत मुराद है, इसका तयन करें। क्या 50, 60, 70, 80, 120, 200, कितनी कसरत मुराद है, ताकि पता चले कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जिस वक्त दावा किया वो दावा बनता था या नहीं बनता था। वैसे इस हदीस के अंदर किसी तौर पर भी ये चीज सामने नहीं आ रही कि ये जनाब इतने फिरके बनेंगे तब जाके जनाब एक बंदा मुंह उठाएगा और वो आकर कहेगा लो जी मैं आ गया हूं, मेरे पीछे चल पड़ो, मैं हूं मा अना अलैहि व अस्हाबी। वेरी गुड। तो दूसरा नतीजा ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले जितने लोग थे वो बकौल इस रजिया के वो नाउज बिल्लाह कुल्लुहुम फिन्नार हैं, सारे के सारे आग में चले गए। जी इम्तियाज भाई आगे बढ़ते। पे शामिल हो गया, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तायीद की और यही पेशगोई का पूरा होना। लेकिन आप देखें अपने आप को, आपको पता ही नहीं कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी, तो आप दावत नहीं दे सके, आप सवालों जवाब कर रहे हैं, जवाब में ज्यादा देर लगती है जवाब देने में। ठीक है, सवाल 10 सेकंड में बंदा पूछते हैं, जवाब के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो आप ये कहें कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, टाइम तो लगेगा जवाब। रोकिएगा जरा जी, इसने बोला है, इसने ये देखें, तकफीर एक मुआशरती
स्टेटस है, सोसाइटी का स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, जिस वजह से किसी कम्युनिटी के राइट्स जो हैं वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इस बंदे ने जन्नती और जहन्नमी होने के एतबार से बात की, लिहाजा ये बंदा, ये शख्स बोल रहा है कि जितने मुसलमान हैं नॉन अहमदीज वो सारे के सारे जहन्नमी हैं और ये लोग जो हैं ये जन्नती हैं। अब भला मुझे बताएं, जन्नत और जहन्नम का ताल्लुक क्या जीते इंसान के साथ है या इसका ताल्लुक खात्मा बिल ईमान के ऊपर है? अगर ये कहें तो क्या इनके बकौल जितने लोग इस वक्त जमात अहमदिया के अंदर हैं वो जन्नती हैं? तो कितने लोग तो जमात अहमदिया को छोड़ भी रहे हैं। फिर तो कहेंगे नहीं जी, वो जो छोड़ेंगे वो जहन्नमी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त मौजूद जमात अहमदिया के अंदर लोगों को मजमूई तौर पर कैटेगोरिकल जन्नती कहना ये इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, ये झूठ है, ये झूठ है, क्योंकि इनकी जमात के लोग जमात छोड़ रहे हैं और इनके बकौल जहन्नमी बन रहे हैं। यानी कल तक जो इनकी नजर में जन्नती था वो आज जहन्नमी बना हुआ है। तो लिहाजा ये वो मसला है जो समझाना मकसद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को गलत तावील बातिल और फासिद की इन्होंने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जमात को जन्नती और किसी जमात को जहन्नमी उस हदीस के अंदर नहीं कहा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरिए को कहा है। ये आखिरी अल्फाज इस चीज का फैसला करते हैं कि नजरिए की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर। हाँ, ये है जी। इम्तियाज भाई आगे बढ़ते। देखिए, मेरा जवाब तो नहीं हुआ, वैसे लोग सुन रहे हैं। मैं एक और बात करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि जमात एक हक पर रहेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता याती अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक। अब इसके अंदर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर कायम रहेगा, कोई उनका नुकसान न पहुंचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आवे। ठीक है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कयामत तक एक जमात हक पर रहेगी। मैं वही आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ कि जब मिर्जा साहब ने दावे नबूवत, दावे मसीहत, दावे कृष्णा और मुहद्दिस और जो जितने भी उन्होंने दावे किए, जब कुछ भी नहीं किए थे, क्योंकि तकरीबन 50 साल के बाद ये सारे मामले हुए, हो सकता है 40 साल के बाद, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, फिर भी मान लीजिए अगर 40 साल एवरेज हम एज मान ले, तो वो 40 साल तक वो क्या उस जमात पर थे जिसके बारे में अल्लाह के वसल्लम फरमा रहे हैं कि कयामत तक वो जमात हक पर रहेगी और लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मैं उस जमात का नाम पूछ रहा हूँ, कौन सी वो जमात थी, क्या नाम था उसका? आमिर भाई बड़ा जबरदस्त सवाल नहीं किया भाई ने, बहुत प्यारा सवाल किया। नाम क्या था? देखिएगा, वो स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि उसका नाम क्या था। अब नाम चाहिए हमें कुरान और सुन्नत से। अब कलाबाजियां देखते हैं जी। जो आपने हदीस पेश की ना कि क़यामत तक एक ताइफा रहेगा जो कि हक पे है, वहाँ पे अकायद के लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की कि क़यामत तक एक ग्रोह की जो हक की तरफ बुलाएगी, उसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम पैदाइश से लेके वफात तक शामिल थे। ठीक है भाई ये मसला बन गया। ओ मैं भाई पैदाइश से लेके भाई 10 सेकंड रिपीट करता फिर आप आइएगा जरा, ये देखिए जी जी। वहाँ पे अकायद के लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की कि क़यामत तक एक ग्रोह की जो हक की तरफ बुलाएगी, उसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम पैदाइश से लेके वफात तक शामिल थे। ठीक है, ले भाई लो जी, ये जुमला इसके गौर करें, इसीलिए ये सवालों के जवाब नहीं देते, याद रखना। अब कादियानियों को ये पता चल जाना चाहिए कि जब हम इनसे ये सवाल पूछते थे तो हमारे सामने ये जवाब क्यों नहीं देता था। उस दिन जब मैं इससे पूछ रहा था कि फिरके को डिफाइन करो, ताकि मैं तुमसे पूछूं तो सही कि जन्नत और जहन्नम के फैसले कैसे करवाने हैं, उस वक्त इसकी जुबान लकवा मार गई थी और इसने हमें स्टेज से उतार दिया। आज ये लाफ गजाफ कर रहा है, जिसके बारे में मिर्जा कादियानी ने कहा था कि आम पब्लिक के अंदर तो लाफ गजाफ मारते हैं, मगर जब को गिरबान पकड़कर पूछे कि इसकी दलील लाओ, तो जहां से निकले होते हैं वहीं घुस जाते हैं। तो ये अल्लाह उस वक्त वहीं घुस ये उस वक्त वहीं घुस गया था जहां से निकला हुआ है, अब लाफ गजाफ मार रहा है। अगर इसमें जुर्रत और तपड़ है तो ये जनाब हमारा सामना करे, हम इससे पूछते हैं सेम यही चीजें हमारे सामने पेश करना, हम तुम्हारे सामने रखेंगे। मिसाल के तौर कहता है जी उस हदीस के अंदर अकायद के हवाले से बात की गई कि अकायद की तरफ वो बुलाएंगे और हक पर होंगे, और इस एतबार से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी दीदा दलेरी के साथ ये कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदाइश से लेके वफात तक हक पे रहे। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं रस्मी अकीदा लिखता रहा हयात मसीह का, और आगे जाकर कहता है कि वो शिरकिया अकीदा था। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 50 साल तक शिरकिया अकीदे की दावत देता रहा, शिरकिया अकीदे की। ठीक है, हवाला नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पर बाद में इम्तियाज भाई को मैं कहूंगा शामिल कर देंगे, वक्त की किल्लत की वजह से। ज़मीमा हकीकतुल वही अल इस्तफ्ता सफा नंबर 94 94, यानी हकीकतुल वही जो है उस वो जो जिल्द है, वॉल्यूम बन जाएगा मेरे ख्याल से शायद 21 है, 22 है, 22 है जी, सॉरी 22, वॉल्यूम 22 पेज नंबर 94 बनेगा ज़मीमा हकीकतुल वही का। अल इस्तफ्ता आगे लिखता है पहले, फमिन सूइल अदब अन युकाल इन्ना ईसा मा मात व इन हुआ इल्ला शिरकुन अज़ीम। वो कहते हैं ये कितनी बेअदबी की बात है कि तुम ये कहो कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत नहीं हुए, ये शिरक अजीम है। याकुलुल हसनाती व युखालिफुल हिसाब, ये नेकियों को खा जाता है, व युखालिफुल हिसाब, ये अकल के भी खिलाफ है। लो, तो अकल के खिलाफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अकीदा रखता रहा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शिरकिया अकीदा रखता रहा, उसकी दावत देता रहा। तो ये कहां से ढकोसला मार दिया कि जी पैदाइश से लेकर आखिरत तक, अपने मरने तक जो है वो जनाब हक पर रहा। खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मेरी सादगी समझो, लाइल्मी समझो, कि मुझे कहा जा रहा था कि तू मसीह मऊद है और मुझे खबर भी ना थी। वो खुद कहता है, और ये ला इल्मी को कह रहा है कि हक पर था। लो, कभी जाहिल को भी हक पर माना गया है। हक पर होना पूरे होशो हवास के साथ होता है। ये कौन सा हक पर होना है कि जिसमें हक पे होने वाले को पता ना हो कि वो झूठ पर है। वाह भाई वाह, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। वो फारसी का शायर ने ठीक कहा है कि पीरा नमी पर आनंद, मुरीदा मी पर आनंद, पीर नहीं उड़ते, मुरीद थलों हाथ पा के उन्होंने चुक चुक के उड़ाते ने। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी जहालत का इतराफ करता है कि वो अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था। 10 साल तक उसको, उसके टीची टीची और मिठन लाल को भी खबर न थी कि जनाब उसके ऊपर क्या वही हुई है।
10 साल बाद उसको होश आई जी, और ये कहता है जनाब वो सच पर था, ये उससे ज्यादा वफादार है। ये अलहदा बैठ के अहमदी कांट आंसर ये चैनल जो है ये बैठकर जनाब जन्नत के टिकट और जहन्नम के फतवे बांट रहा है आज बैठ। जी जनाब। वो जो हदीस है ना उसमें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से पहले जो जब नबी आते हैं ना या जब कोई अब आमिर भाई इसने ना बड़ी एक ठंडी आ भरी है, बड़ा खुश्क हो गया, देखिए जरा, ये बड़ी अहम बात है, ये देखें। में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से पहले जो जब नबी आते हैं ना या जब कोई रिफॉर्मर या वली आता है जो कि अल्लाह ताला ने जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मन आद अली वलियन फकत अज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से नफरत करे उससे मैं ऐलान जंग करता हूं। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से पहले आप उसी ग्रोह में शामिल होंगे और आपके साथ वो नेक लोग थे जिन्होंने आपकी मुखालफत नहीं की। वो ग्रोह होगा। मैं आपको बाज नाम देता हूँ, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब। ये क्या किया, ये क्या है? बड़ी गेम डली है भाई, बड़ी गेम डली है, जरा दोबारा सुनिएगा, गेम डल गई है भाई, ये देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मन आद अली वलियन फकत अज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से नफरत करे उससे मैं ऐलान जंग करता हूं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से पहले आप उसी ग्रोह में शामिल होंगे और आपके साथ वो नेक लोग थे जिन्होंने आपकी मुखालफत नहीं। हाँ भाई देखे जरा, इसको नोट कीजिएगा भाई जरा इस बात को। ये कह रहा है कि दावे से पहले ही मुखालफत नहीं की, नोट कर ले भाई बात को। हाँ जी, मैं यही बोलने लगा था कि ये आर यू लिसनिंग टू योरसेल्फ रज़िया, क्या तुम खुद को सुन रहे हो जो तुम बोल रहे हो हैं? ये दावे से पहले जिन्होंने मुखालफत नहीं की, तो दावे से पहले कैसे करते हैं जी? तो दावे से पहले मुखालफत कैसे करते हैं? मिर्जा कहता है मैं गुमनामी के गड़े के अंदर पड़ा हुआ था और मुझे कोई जानता तक न था, और मिर्जा खुद अपने बारे में कहता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि कोई मुझे महीना 10 रुपए भी देता, और वो लिखता है नुज़ुलुल मसीह के अंदर कि मुझे तो सिर्फ अपने रोटी के दस्तरखान की फिक्र थी। ये वो टाइम था। यार शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि ये जुमले कैसे बोल रहा है? कह रहा जी वो हदीस सुनाइए अपनी तरफ से, ठीक है, मन आद अली वलियन, अपनी तरफ से अरबी जुबान बोल के हदीस सुनाइए ताकि आम मुसलमान के ऊपर ये भरम डाले कि मैं कुरान और हदीस से मसला बयान कर रहा हूं। कुरान और हदीस से 1 मिनट के लिए पूरी ईमानदारी से कोई कादियानी सुन रहा है, बताओ इस हदीस को ले लें, इसका तर्जुमा ले लें, बताएं जो ये इस्तदलाल कर रहा है यहाँ फिट कैसे बैठ रही है, मुझे ये समझा दो। ये बताओ जरा, ये बड़ है, बोल बच्चन, बक बस है जी, ये चक्कर है जी। इम्तियाज भाई आगे बढ़ते हैं। अभी भाई ना बड़ी अहम ये बात करेगा तो उसको बस सुनिएगा जरा सब लोग। फिर आपके साथ वो नेक लोग थे जिन्होंने आपकी मुखालफत नहीं। वो ग्रोह होगा। मैं आपको बाज नाम देता हूँ, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब चर्चना शरीफ वाले उस ग्रोह में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद गजनवी साहब इस ग्रोह में शामिल है, अहले हदीस सालिम है, लेकिन हम उनको उस ग्रोह में शामिल करेंगे। फिर बहुत सारे उलमा उस ग्रोह में शामिल थे, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया फिर उसी सेकंड वो कुल्लुहुम फिन्नार में आ जाते हैं। तो पहले बटालवी साहब भी हक पे, ठीक है, लेकिन जब आपने मसले का इनकार किया तो उसी सेकंड रोके जरा, ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर, इस पे हवाला दिखाना बनता है। 1 मिनट दीजिएगा, बिस्मिल्लाह करें। कहता है इनकार नहीं, पहले मैं समझा दूं, पहले गौर से सुन ले। रजिया इस वक्त ये आर्गुमेंट रख रहा है आपके सामने, वो ये कह रहा है कि अगर किसी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इनकार नहीं किया तो वो कुल्लुहुम फिन्नार है। अगर किसी ने इनकार किया, अगर किसी ने इनकार किया है तो वो कुल्लुहुम फिन्नार के अंदर आएगा। अगर उसने इनकार नहीं किया ना तो हम उसको उसकी कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे, जहन्नमी के अंदर, बल्कि वो मा अना अलैहि व अस्हाबी में आ जाएगा। इसने चंद लोगों के नाम दे के ब्लेंडर दिया। अब पॉइंट नंबर 1 ये कहना चाह रहा है कि कुल्लुहुम फिन्नार में होने की शर्त ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इनकार किया जाए। जो इनकार नहीं करता ना उसकी तकफीर होगी ना वो जहन्नमी होगा, ये याद रखना, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हवाले की तरफ। इसका बेड़ा गर्क किसने कर दिया है? ये इसको चाहिए कि ये सूफियाओं की और बुजुर्गों की किताबें पढ़ने से ज्यादा बेहतर ये है कि ये अपने लिटरेचर अपना पढ़ ले, ठीक है ना जी, ये अपना लिटरेचर पढ़ ले। 1 मिनट है जी, मैं जरा, ठीक है जी, 1 मिनट दीजिएगा जरा, 1 मिनट एडिट कर लूं मैं जरा को, ताकि ये जूम हो सके सही से और नजर आ सके। हमने भाई जब कहा है ना कि अपनी कैरियर खत्म कर गया, हमने भाई वैसे नहीं कहा इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें जी, मैं शेयर कर रहा हूँ जरा रेफरेंस, इसको शो कराइएगा। ठीक है जी, ये देखें अनवारुल उलूम है, जिल्द वॉल्यूम इसका बन जाएगा 6 पेज बनेगा 151, आईना सदाकत, ठीक है जी। ये हम पढ़ते हैं। यहाँ तकफीर के मसले को डिस्कस किया जा रहा है अब्दुल हकीम पटियालवी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बहरहाल जबकि खुदा ताला ने मुझ पर जाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं, कबूल नहीं किया। यही वही जो रजी बता रहा है, और खुदा के नजदीक काबिल मुआवजा है। तो ये क्यों कर हो सकता है कि अब एक शख्स के कहने से जिसका दिल हजारों तारीखियों में मुब्तला है खुदा के हुक्म को छोड़ दूं? यानी वो कह रहा है कि मैं तकफीर क्यों रोक दूं। अब आपने ये सुनना है जुमला, ये देखिएगा। जो लोग, जूम कर रहा हूं, देख रजी, आंखें खोल के देख, जो लोग मिर्जा कादियानी को काफिर तो नहीं कहते मगर आप पर ईमान भी नहीं लाते, वो भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल हैं जो आपको काफिर कहते हैं। हत्ता कि जो शख्स सिर्फ मजीद तसल्ली के लिए कुछ मुद्दत इंतजार भी करे और बैत नहीं करता, इंतजार करता है और बैत नहीं करता, वो भी मुनकिरों के साथ ही समझा जाएगा। और फिर मेरे अपने अल्फाज में इन हवाला जात का खुलासा निकाला गया है कि पस ना सिर्फ वो शख्स जो आपको काफिर कहता है या जो आपको काफिर तो नहीं कहता मगर आपके दावे को नहीं मानता, काफिर करार दिया गया है, बल्कि वो भी जो आपको दिल में सच्चा करार देता है और जुबानी भी आपका इनकार नहीं करता लेकिन अभी बैत में उसे कुछ तवक्कुफ है, काफिर करार दिया गया है। इसके बाद इसी मजमून के मुतल्लिक कुछ ताइदी हवालाजात नकल किए हैं और इस सुलह की तहरीक की कमजोरी दिखाते हुए गैर अहमदियों के पीछे नमाज पढ़ने के मुतल्लिक मिर्जा कादियानी की मुमानत का फतवा दर्ज किया है। तोहफा गोल्डबे का रेफरेंस
कोट किया हुआ रवानी खजान जिल्द 7 का, ठीक है जी। ये देखें, जो लोग आगे पढ़, जो लोग मिर्जा कादियानी को रसूल नहीं मानते, ख्वा आपको रास्तबाज ही मुंह से क्यों ना कहते हो, वो पक्के काफिर है। लो जी जनाब इम्तियाज भाई वीडियो चले जी 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 वीडियो चलाएं आगे इंशाल्लाह। जी जी चलाएं जी। मेरा अच्छा पॉइंट इसके ऊपर आ गया कि ये धोखा दे रहा है इस एतबार से कि ये कह रहा है कि जनाब जिन लोगों ने मिर्जा कादियानी की तनकीद नहीं की, उसकी तकफीर नहीं की और उसको कुछ बुरा भला नहीं कहा, उसके ऊपर तकफीर लगाई जा रही है, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ना उन्होंने माना, ना उस पर ईमान लाए, ना उसकी बैत की। ये आपके सामने इसी तरीके से एक और हवाला भी पेश कर दूंगा, एक मिनट सर मुझे दीजिएगा, ताकि एक मिनट जरा ये देखें जी, ये भी हवाला हम दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसने कहा ना, ये कह सकता है कि जी वो अगर वो मिर्जा कादियानी के नबूवत के दावे से पहले ही फौत हो गए हों तो फिर तो नहीं ना जनाब उनके ऊपर हम फतवा लगा सकते। ये इसका भी हम जवाब दे देते हैं। अनवारुल उलूम वॉल्यूम 6 है, पेज 110, आईना सदाकत। मौलवी मोहम्मद अली ने जब इनके ऊपर 3 अकीदों पर एतराज किया, नंबर 1 पहला अकीदा ये था कि ये मिर्जा कादियानी को फिल वाक़े नबी मानता है, जमात कादियानिया, यानी सच्चा हकीकी नबी, यानी नबी नबूवत, मुहद्दिस नहीं, मुजद्दिद नहीं, नबी। दूसरा ये कि अहमद नाम की पेशगोई जो कुरान में आई है उससे मुराद मिर्जा कादियानी है। और तीसरा अकीदा येलो हाईलाइट में है, सौम ये कि कुल मुसलमान जो हजरत कादियानी की बैत में शामिल नहीं हुए, ख्वा उन्होंने मिर्जा कादियानी का नाम भी नहीं सुना, वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। कोई ये कह सकता है कि इन्होंने मोतरिज की इबारत को नकल किया है, ये अकीदा नहीं था, आगे तनकीद की है। तो ये सुन लें, हर सह अकायद के बारे में बयान। वो कहता है मैं तस्लीम करता हूं कि मेरे ये अकायद हैं, मेरे ये अकीदे हैं, लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि 1914 या इससे 3-4 साल पहले से मैंने ये अकायद इख्तियार किया। तब देखें आखिर जिक्र वाला तकफीर का अकीदा है, ये जो येलो है आखिर जिक्र कि मिर्जा कादियानी के वक्त से कहता है मेरा अकीदा ये है कि जिसने मिर्जा कादियानी को नाम ना भी सुना हो मगर उन पर ईमान नहीं लेके आया, या उनको काफिर करार देता है, या उनकी बैत में शामिल नहीं है, वो सारे के सारे काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लो जी आपकी स्क्रीन पर था, झूठ बोलता है पब्लिक के सामने, धोखेबाज। जी भाई चलने दें आगे। सेकंड आप कुल्लुहुम फिन्नार में आ गए। तमाम जवाब आप दावे की बात का ही दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तब सब लोग एक ही जमात में थे, फिर उन्होंने दावा किया, मैंने कब तो वो किया जमात में बटालवी साहब आप कह रहे हैं अहले हदीस थे, मैंने कब ख्वाजा, कहा सारे एक जमात, मैंने तो तो नहीं वो जमात कहाँ है, वो क्या कौन सी जमात एक थी मिनट वो? रोकिएगा, मुझे मुकर गया, ये तो मुकर गया। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था वो सारे एक जमात में होंगे, वगरना वो कुल्लुहुम फिन्नार में चले जाएंगे। अभी कह रहा मैंने ये कहा ही नहीं है कि वो सारे जमात में होंगे, ये तो मुकर गया। कैसा धोखेबाज है, कहता मैंने कब कहा है, अभी थोड़ी देर पहले तू हदीस सुना के जिसका कोई ताल्लुक नहीं था तुम्हारी बात के साथ, फिर भी तुमने जड़ दी उस हदीस को रोक डालने के लिए। तुमने जनाब उनको कहा है कि वो सारे एक जमात के अंदर होंगे, बल्कि इसने कहा वो उनके साथ, यानी जो उस तरह आता जाएगा वो साहबी बनता जाएगा, मां अना अलैहि व साहबी में शामिल हो जाएगा। ये जुमला बोला था इसने, बहुत झूठा। तौबा तौबा तौबा, मक्कार अय्यार लोग, और हों क्यों ना, जमात कादियानिया से ताल्लुक है। जी भाई चलने दे। उस हदीस में जमात का लफ्ज ही नहीं आया, उसमें तो ताइफा का लफ्ज आया। ताइफा मतलब क्या होता है? एक गिरोह होता है, ग्रोह होता है उसका एक गिरोह में कितने लोग होते हैं, गिरोह में कितने लोग को ग्रोह किया जाता है? एक मिनट रोकिएगा, सॉरी रोकिएगा। ये देखो लफ्जों के साथ खेलना शुरू कर दिया। कहता है उसमें जमात का वर्ड नहीं आया, उसमें ताइफा का आया। तो वो जो फिरकों वाली सुना रहा है उसके अंदर जमात का आया, फिरके का तो आया कोई नहीं। उसमें तो आया जमात होगी इल्ला वाहिदा, दूसरी रिवायत के अंदर आता है हुमुल जमा, वो जमात होगी, उसमें फिरके का तो आया नहीं। और अगर कहे कि फिरके के कॉन्टेक्स्ट में जमात आया है, तो यहाँ जो ताइफा आया है वो भी हक पर रहने के एतबार से। अच्छा चेक करें कलाबाजी कि इस हदीस को भी मिर्जा कादियानी की जमात पे लगा रहा है और उस हदीस को भी मिर्जा कादियानी की जमात पे लगा रहा है, जबकि खुद फर्क कर रहा है कि जमात नहीं आया ताइफा आया है। तो पहले फर्क बताएगा कि जमात और ताइफा के अंदर फर्क क्या होता है, क्या ये किसी जमात के नाम रखने की वजह से होता है या नजरियात की बुनियाद पर होता है। जी भाई चलने दे। तो वो बहुत सारे लोग कहाँ पर थे? मैं आपको उनके आपने कहा पैदाइश से लेके 40 साल तक, जबकि कोई नहीं दावा था, तो किसी जमात को फॉलो कर रहे थे वो? जमात का लफ्ज नहीं है, जमात तब होगी जब एक इमाम गिरोह था, वो गिरोह होगा, उसी को जमात कहते हैं। आप गिरोह कह ले, जमात कह ले, गलत बात। आप तौइफा अच्छा। जो होता है वो जमात नहीं होती, जमात ताइफा गिरोह होता है। बात आप सुनना चाहते हैं भाई जी। तौइफा के लिए ये लाजिम नहीं कि एक इमाम हो, जमात के लिए ये लाजिम है कि एक इमाम हो। वहां पे जमात नहीं थी। रोकिएगा, आप अलैहिस्सलाम रोकिएगा, इसके ऊपर दलील दी है इसने कोई? नहीं। ये ताइफा के लिए जरूरी नहीं है, सुने जरा कितना बड़ा ब्लंडर है। ताइफा के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनका कोई इमाम हो, मगर उस हदीस में लिखा हुआ है कि वो कयामत तक हक पे रहेंगे। अल्लाह अकबर, धजियां उड़ाकर रख दी अपने मुकदमे की। अल्लाह इसका मतलब है रजी ये मान रहा है कि ताइफा ऐसे लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जिनका कोई इमाम ना हो, फिर भी वो कयामत तक हक पे रहें। अल्लाह अकबर, तहो बाला करके रख दिया अपने मुकदमे को। मैं कादियानियों को कहता हूं तवज्जो करो, जो तुम कहते हो कि हक पे होने के लिए इमाम होना जरूरी है, जमात का होना जरूरी है, ये तुम्हारा रजिया जो है ये सामने बैठकर कह रहा है कि उस सही मुस्लिम की हदीस के अंदर ताइफा है जो जमात नहीं है, उसके लिए इमाम होना जरूरी नहीं है। ये तो पूरे का पूरा मुकदमा उड़ाकर रख दिया है। इसका मतलब यह है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि इमाम ना होते हुए भी किसी ग्रुप जो कि मुख्तलिफ लोग हैं वो कयामत तक हक पे रह सकते हैं। और जब कयामत तक हक पे रह सकते हैं तो उसका मतलब पता है क्या है? मां अना अलैहि व असहाबी में शामिल हैं, क्योंकि हक पर रहने का लाजमो मलजूम नतीजा ये निकलता है, नेचुरल रिजल्ट ये निकलता है कि वो जन्नती होंगे, तभी तो कयामत तक हक पे रहेंगे। अल्लाह अकबर, आहा
کیا کہنے الفضل ما شہدت بہل آدا، دشمن بھی ہمارا مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر کہتا ہے جی جماعت اس کو کہیں گے جس کا امام ہو. تو سوال یہ ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ جماعت ہوگی، ادھر کہہ رہا ہے کہ طائفہ ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ جماعت نہیں ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ طائفہ نہیں ہے، طائفہ کا امام نہیں ہوگا، جماعت کا امام ہوگا، اور دونوں جماعت احمدیہ پر فٹ کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا امام ہے بھی اور نہیں بھی، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ یہ تو تضاد ہے. اور مرزا قادیانی کہتا ہے جس کے کلام میں تضاد ہو یا وہ منافق ہے یا وہ پاگل کا بچہ ہے. جی سوری، ہاں یعنی پاگل ہے، منافق ہے. اب رضی فیصلہ کر لے کہ اس نے کیا بننا ہے، منافق بننا ہے یا پاگل بننا ہے، یا لوگوں کو پاگل بنانا ہے قادیانیوں کو، فیصلہ وہ کر لے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ طائفہ امام کے بغیر بھی مسلمان حق پر ہو سکتے ہیں. یہی مقدمہ تھوڑی دیر پہلے میں رکھ رہا تھا کہ کتاب الفتن کے دور میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں نقشہ کھینچا ہے، وہاں سے یہ بات کرسٹل کلیئر سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن اور سنہ پر عمل کرے گا، وہ ما انا علیہ و صحابی کی کیٹیگری میں آٹومیٹکلی آ جائے گا. اس میں کسی امام کے ظاہری جماعت کے امام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے امام الانبیاء محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. جی بھائی آگے چلتے جو ہیں ان کے زمانے میں دعوے سے پہلے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، خواجہ غلام فرید صاحب چچا شریف ان کے ماننے والے حق پہ تھے، محمد حسین بٹالوی صاحب حق پہ تھے، نذیر حسین دیلوی صاحب حق پہ تھے، لدھیانوی صاحب لدھیانوی صاحب حق پہ تھے، ٹھیک ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب حق پہ تھے. جب آپ نے دعویٰ کیا اور انہوں روکیے نے ذرا، مخالفت کی، یہ کہہ رہا جی یہ حق پہ تھے، کیا عقیدے تھے ان کے؟ ہاں عقیدے کیا تھے؟ اللہ رضی بتا نا، عقیدے بتا، اصل مسئلہ ہے عقائد. تو عقیدے بتا، ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، حیات و وفات مسیح کے بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ ہاں جی یہ بتا، یہ ہے اصل مسئلہ. تو جب ان کے عقیدے بتاؤ گے تو بات ہوگی، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. اس طرح تو ہمیں 1300 صدیوں کے علماء کے نام لے کر کہے گا وہ بھی حق پہ تھے، وہ بھی حق پہ تھے. عقیدے کیا تھے ان کے؟ وہ عقیدے جن کو تمہارا مرزا غلام قادیانی کفریہ شرکیہ خلاف اسلام عقیدے کہتا رہا ہے. اسی لیے ہمارے سامنے یہ فرقے کو ڈیفائن نہیں کر رہا تھا، اب لاف کے مار رہا ہے. جی آگے چلتے. اسی وقت کلہم فی النار میں شامل ہو گئے. اس سے پہلے انہوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی، آپ کے ہم عقائد تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کو نیک سمجھتے تھے، صالح سمجھتے تھے، آپ کے نام کے قائل تھے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی جو تھے وہ اہل حدیث تھے، اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوئی تھے، وہ دیوبندی تھے، اور بھی لوگوں کا آپ نے نام لیا، دو لوگوں کے بارے میں جو جانتا ہوں میں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت تک اہل حدیث جماعت اور دیوبندی جماعت یہ سب حق جماعت تھی، طریقے کے اندر شامل تھے یہ جنتی جماعت میں؟ بہت اچھا سوال ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصدیق ان کو میں حق والوں میں شامل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جنہوں نے بھی کی تھی. جہاں تک اس سچے فرقے کی بات ہے وہ تو ابھی پیش کی، اس کا اس لحاظ سے ظہور نہیں ہوا جب تک آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا. اس سے پہلے اس حدیث کا جو ایکچوئل ظہور ہے وہ نہیں ہوا. ہاں روکیے گا ذرا، روکیے گا. کہتا ہے جی جن جن لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کی تصدیق کی، کس چیز کی تصدیق، کس چیز کی؟ اس کا دعویٰ تھا کیا؟ بس تصدیق ہوتی ہے دعوے. یار امتیاز بھائی، آپ کسی ایسے بندے کی تصدیق کر سکتے ہیں جو خاموشی سے آ کے آپ کے پاس کھڑا ہو جائے؟ یہی تو بھائی میں نے کہا ہے نا، کیریئر ختم ہو گیا ہے. یہ کیا یہ دھوکا اور فراڈ اور اتنا زیرو آئی کیو، یہ مائنس میں آئی کیو چل رہا ہے اس کا. میں تو حیران ہو گیا ہوں، یہ اس کو چیمپئن بنا کے پیش کرتے تھے قادیانی. ہوئے 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 او بھائی، ایک بندہ خاموشی سے آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، میں اس کی کیا تصدیق کروں گا؟ تصدیق کے لیے ضروری ہے دعویٰ، اور ثابت کرنا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جنہوں نے تصدیق کی تھی وہ کس دعوے میں کی تھی، اس کا دعویٰ تھا کیا جس کی وہ علماء تصدیق کر رہے تھے، ان کو پیش کرنا پڑے گا. اور کہتا ہے جی ابھی وہ دعویٰ کیا کوئی نہیں تھا جو آگے تھا، تو تصدیق کس چیز کی تھی؟ پکوڑے کی؟ کس کی تصدیق کی تھی جب تھا ہی کوئی نہیں؟ بھائی آگے چلنے دے بھائی، مجھے لگ رہا ہے ویڈیو لمبی ہے اور میں زیادہ ہی تبصرہ کرتا جا رہا ہوں. جی لوگوں نے اپنے فرقے گنوائے ہیں کہ 73 فرقے ہو گئے. بہت سارے اولیاء نے کہا کہ ہم وہ 73واں فرقہ ہیں، ہم وہ 73واں فرقہ ہیں، لیکن اس کا جو اصل جو فلفلمنٹ ہے وہ تب ہی ہوئی ہے جب آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت قائم کی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ پوچھیں ایز اے گرو، میں نے یہ نہیں کہا کہ بٹالوی صاحب گنگوئی صاحب یہ سارے معصوم تھے. میں نے کہا کہ جب انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، آپ کے الہامات کا دفاع کیا، پیر میر علی شاہ نے بھی کیا، تو یہ سارے میں ان کو ان میں شامل کرتا ہوں جو کہ سیدھے راستے پہ جاتے. جب انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا وہ اسی وقت کلہم فی النار میں آ گئے تھے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا وہ سچی جماعت میں تھے، وہ یہ کیا بات کی ہے اس نے؟ ایک منٹ روکیے گا، تھوڑا تھوڑا پیچھے کریں، سا بیک کریں. ہاں سیدھے تھوڑا سا بیک کریں. امام احمد اعظم کی تصدیق کی، آپ کے الہامات کا دفاع کیا، پیر میر علی شاہ نے بھی کیا، تو یہ سارے میں ان کو ان میں شامل کرتا ہوں جو کہ سیدھے راستے پہ جاتے. جب انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا وہ اسی وقت کلہم فی النار میں آ گئے تھے. جہاں تک یہ نہیں آگے جملہ مکمل ہونے دیں احمد بھائی، آگے والا. جماعت میں تھے، وہ جماعت میں نہیں تھے، وہ طائفہ میں ان کو شمار کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی تو وہ اس طائفے میں شامل تھے جب تک انہوں نے مسیح موعود کا انکار نہیں کیا. جب تک عقائد کے لحاظ سے اگر آپ پوچھیں کہ ان کے عقائد سے جی سوری، یہ جملہ بھی مکمل ہونے دیں. بعض چیزوں میں صحیح تھے، نہیں وہ سب مسئلہ نہیں ابھی، خالی میں اتنا ہی پوچھ رہا تھا آپ سے. روکے ذرا، اوئے ہوئے ہوئے، اتنے بلنڈرز. بندہ کہتا ہے جی ٹھیک جا رہے تھے جب تک ان کی تصدیق کر رہے تھے، جیسے ان کا انکار کیا وہ اس وقت کلہم فی النار میں چلے گئے. ٹھیک ہے جی، وہ کلہم فی النار میں چلے گئے. اس کا مطلب ہے
इम्तियाज भाई गौर कीजिएगा, पॉइंट तवज्जो दोस्तों जो सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुल्लुहुम फिन्नार अफराद के अकायद पर होता है, जमात पर नहीं। जबरदस्त। अगर जमात के ऊपर होता, फिरके के मुकम्मल कम्युनिटी के ऊपर होता, तो कभी ये ना कहा जाता कि एक बंदा तस्दीक कर रहा है वो तब तक तो इसमें है, मगर जैसे ही तकफीर की है वो कुल्लुहुम फिन्नार में हो गया। और खुद बोला अपनी जुबान से आगे जाके, कहता है कि जनाब मैं ये नहीं कह रहा कि वो फिरका नाजिया के अंदर थे। लो, तो फिरका नाजिया के अंदर नहीं थे तो उस ताइफा के अंदर कैसे आ गए जो कयामत तक हक पे रहेगा? लो भाई, यानी एक चीज कयामत तक हक पे रहेगी और फिर बीच में 5% बातिल पे भी आ जाएगी। कहता जी कुछ अकायद गलत थे, कुछ ठीक थे। हक परसेंटेज पे जो है ना वो डिपेंड नहीं करता। हक या तो 100% हक होता है या 100% बातिल होता है। उधर लिखा हुआ है कयामत तक हक पे रहेंगे। ये कहता जी इतनी देर तक रहे, उसके बाद जनाब निकल गए, और थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत नहीं थे। ये क्या तमाशा है, ये क्या गोरख धंधा है, ये क्या दलिया है, ये क्या खिचड़ी है? भाई हम बीमार नहीं है कि तुम हमें खिचड़ी खिला रहे हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं। हाँ जी, हमें को सीधी बात करो। जी जी। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी जो थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो थे, इनका ताल्लुक खासकर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, ये अहले हदीस के बड़े आलिम, मौलाना रशीद अहमद गंगोही देवबंद के बड़े आलिम, ये एक जमात को फॉलो कर रहे थे। उनकी एक जमात है, आप जिसको फिरका कहते हैं, एक फिरका था, अहले हदीस एक फिरका, देवबंदी एक फिरका। आप कह रहे हैं कि जब उन्होंने दावा किया, मिर्जा साहब ने जब दावा किया, तो आप कह रहे हैं कि वो जमात का वजूद हो गया, वो ताइफा का वजूद हो गया, वो फिरका 73वां वजूद। मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले क्या वो फिरका दुनिया में मौजूद था या नहीं था? वो 73वां फिरका मां अना अलैहि वसहाबी वाला जो था, वो था कि नहीं था? तो क्या उस वक्त नहीं था? एज अ जमात नहीं था। हाँ, बाज अशखास थे जो कि सहाबा की तरह थे। इस वजह से एक और हदीस भी हमें मिलती है, सही इब्ने माजा की है, कि 2 ग्रोह आग से बचेंगे। ठीक है, असौबतान, 2 ग्रोह आग से बचेंगे, गज़वा हिंद, और जो कि मसीह के साथ होंगी। गज़वा हिंद में वो तमाम औलिया शामिल होते हैं जो आप अलैहिस्सलाम से पहले थे, लेकिन वो फिरका तो नाजी नहीं शुमार होगा, क्योंकि वो जो हदीस है 73वां फिरका, वो एक जमात होगी, जमात का एक इमाम होगा, वो नहीं था। कोई वहां पे इमाम नहीं था, ना कोई जमात थी। वो जब आप अलैहिस्सलाम ने दावा किया, फिर वो जमात बनी है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की जमात है। तो आप रोकिएगा अलैहिस्सलाम से रोकिएगा रोकिएगा, ले जी, इसने क्लेम किया इम्तियाज भाई कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जमात बनाने से पहले कोई भी मां अना अलैहि व असहाबी वाली जमात में नहीं था। ये क्लेम किया इसने। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, ये ब्लंडर, कितना बड़ा ये ब्लंडर है। इस बंदे को शर्म नहीं आई कि ये बोल क्या रहा है। दूसरी चीज, और इसकी पकड़ हो सकती है लाइव। मुझे हैरानगी नहीं होगी कि अगर जमात कादियानिया इस बंदे के ऊपर इस वक्त बैन लगा दे, जो ये बातें कर रहा है, जो इसने जुमले बोल दिए ना, इसके बाद इसके ऊपर बैन लग जाना चाहिए उसूली तौर पर जमात कादियानिया की तरफ। मगर चूंकि गंदा है पर धंधा है, ये हो सकता है चलता रहे, मगर उसूली तौर पर इसके ऊपर इस वक्त बैन लग जाना चाहिए जो ये जुमले बोल रहा है। नंबर 1 ब्लंडर, कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले कोई मां अना अलैहि व असहाबी पर नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसने उसके बाद कहा हदीस है कि 2 ग्रोह सिर्फ होंगे, 2 ग्रोह जिनके ऊपर आग हराम कर दी गई है, जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। तो इसका मतलब है वो कुल्लुहुम फिन्नार में तो आएंगे नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर वो 2 ग्रोह जहन्नम में चले गए तो फिर वो हदीस नाउज बिल्ला बातिल हो जाएगी जिसमें लिखा है कि 2 ग्रोहों को आग नहीं छुएगी। तो वो ऑटोमेटिकली कुल्लुहुम फिन्नार से निकल गए और ऑटोमेटिकली मां अना अलैहि असहाबी पर आ गए। झूठ चेक करें इस बंदे का, माइंड बॉगलिंग ये डिस्कशन इस वक्त कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कहता है जी 2 ग्रोह होंगे, फिरका नाजिया नहीं था, सारे कुल्लुहुम फिन्नार में थे, मगर 2 ग्रोह थे। पता है जी कौन से 2 ग्रोह थे? एक जो मसीह अलैहि सलाम के साथ होंगे, फिर वही मां अना अलैहि असहाबी। ओ यार चेक करो, यानी पहले जो हदीस है फिरके वाली, उसमें जो मां अना अलैहि असहाबी है वो भी जमात अहमदिया, और जो दूसरी हदीस है जिसमें 2 ग्रोह होंगे उनमें से एक ग्रोह होगा ईसा इब्न मरियम यानी मसीह के साथ, वो भी जमात अहमदिया। लो जी, एक ग्रोह बाकी बचा, कौन सा? जो गजवा हिंद करेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या असले मुसफ़ा के 13 सदियों के मुजद्दिद गजवा हिंद करने आए थे? अल्लाह अकबर। हिंद के अंदर कहता है जी हिंद के उलमा, तो हिंद से बाहर जितने लोग थे वो सारे के सारे जहन्नमी, क्योंकि सिर्फ 2 जमातों ने होना है, एक मसीह के साथ जो इनका है ठीक है, और एक वो जिन्होंने गजवा हिंद करना है, यानी हिंद के इलाके के साथ खास। कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। रजिया तुझे क्या पता वो क्या होता? आगे बढ़ेगी। लेकिन उनका अल्लाह ताला उनको इस तरह उनका हिसाब करेगा कि उनका क्या पहुंचा है, उन्होंने कितनी जिद्दोजहद किया। हर बंदे का अपना मामला हिसाब होगा। वहां जमात की, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोविड आई है, जब वैक्सीन अभी नहीं आई थी तो लोगों के पास इलाज नहीं था, कोविड का इलाज नहीं था। उस जमाने में जब हज़रत मसीह मौद ने अपनी दावत नहीं की, तो जमात थी ही नहीं, तो उनके ऊपर ये हदीस हम नहीं अप्लाई करेंगे जनाब। उनको अकायद के लिहाज से देखेंगे, जिनके अकायद सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे, अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा मामला करेगा। जिन्होंने आप अलैहि वसल्लम का इनकार किया, मुखालफत की, वो ग्रोह नहीं, वो आए ही तब। रोकिए जरा, वैक्सीन की मिसाल दी है, अपनी तरफ से लॉजिकल बन रहा है, तो चलो जी वैक्सीन वाली मिसाल को लेके तुम्हारे ब्लंडर को एक्सपोज करने लगा हूं। इसने जो मिसाल दी है, कहता है जब कोविड आया था, जब तक वैक्सीन नहीं थी तो लोग वैसे ही रह रहे थे, वैक्सीन बनी तो लोग जिंदा बचे और उनको सेहत मिली। दूसरे लफ्जों में यह कहना चाह रहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले ना कुरान था ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। ये कहना चाह रहा है, ये तुम्हारा एतबार है। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले वैक्सीन मौजूद ही नहीं थी हिदायत के लिए, यानी कुरान और सुन्ना ही नहीं था। तो कहां गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का वो जुमला जो वो कहता है कि जो चीजें ईमान के मिदार के लिए जरूरी थी वो मुसलसल मुसलमानों के ग्रुप के अंदर मौजूद रही हैं, जो मुसलमान और मदारे ईमान थे। हर जमाना में बराबर शाये होती रही हैं। हर जमाने में बराबर शाया होती रही हैं
وہ چیزیں جو مدار ایمان ہیں، بنیاد ایمان ہیں. سوال یہ ہے کہ تم ویکسین کی مثال دے رہے ہو تو قرآن و سنت تو مرزا سے پہلے بھی موجود تھا. تو الحمدللہ گمراہیوں کو دور اور ظلمات کو ہٹانے کے لیے جو شمع کا ہمارے پاس پروانہ موجود تھا، ہمارے پاس شمع جو موجود تھی الحمدللہ، وہ قرآن و سنت موجود تھا. یا تم دوسرے لفظوں میں کہہ دو کہ نہیں تھا 13 سال تک. بہت شکریہ.